آئے کلام خدا میں سے آج ہم دیکھیں گے رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 12 اور 13 دو آیات کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ جو بھی تلاوت کرنا چاہے وقت ہے کہ خداوند کے زندہ کلام کی تلاوت کرنے میں رہنا چاہیے۔ جن کے پاس خداوند کا اسی کی بس کلام ہے، میرے ساتھ ہمارا نکالیں۔ رومیوں کے نام پولس کا خط اور اس کی 8 باب اور کی 13 اور 14 کی 12 اور 13 کی تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ کے مقدس کلام میں اس طرح لکھا ہے، پس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیستر نہیں کرو گے تو جیتے رہو گے۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنی جانے پر خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے جو تیرے اصول ساتھو ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، میری دعا تیرے اصول ہے، تو اپنے لوگوں سے کلام کر۔ اے باپ، میں کمزور ہوں لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے سور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر۔ تیرا کلام ان تمام زندگیوں میں اور ان تمام زندگیوں میں جو انٹرنیٹ پر تیرے کلام کو سنے، قرآن راج کرے، اپنے لوگوں کو برکت دے، آسمان کھول دے، بڑی قدرت کو ظاہر کر۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں سے جو تلاوت کی ہے، 2 آیات خدا کے خادم نے، یہ پیاری بہن ارشاد نے مجھے یہ پیغام دیا کہ خداوند کے کلام کو رومیوں کے خط میں سے 8ویں باب کی 12 آیت سے 18 آیت میں سے خدا کے کلام کو بیان کیا جائے۔ خداوند کی یہ مرضی ہے، تو میں پہلی 2 آیات پر غور کروں گا۔ اگر خدا نے پھر وقت دیا تو اس سے آگے بھی بڑھیں گے، لیکن آج ہم ان 2 آیات پر غور کریں گے۔ لکھا ہے، پس سے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے عزیز، یہاں پر لفظ مقدس پولس نے قرض کا استعمال کیا ہے کہ ہم قرضدار ہیں۔ اگرچہ یہ لفظ کوئی اتنا گہرا یا پوشیدہ یا کسی کی نظر سے، نگاہ سے دور نہیں ہے، روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگ اس لفظ سے واقف ہیں اور قرض کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بہت سے لوگوں نے قرض دینا ہے، بہت سے لوگوں نے لینا ہے، لہذا قرض کا مطلب ہے، قرضدار کا مطلب ہے جو مقروض ہوتا ہے، جس نے کسی کا قرض دینا ہوتا ہے، اور قرض خواہ وہ ہوتا ہے جس نے قرض لینا ہوتا ہے۔
और यहाँ पर मुकद्दस पौलुस कहता है, बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं। इससे पहले के इस बात पर गौर करें, कर्ज के तल्लक से बनी इस्राएल की जिंदगी में जो कर्ज के साथ तल्लक है, उनका ये कोई तजारती मसला नहीं था। बनी इस्राएल में जो लोग गरीब होते थे, बादशाह के दौर से पहले बनी इस्राएल जिमीदार से तल्लक रखते थे, और अगर कोई शख्स गरीब होता और वो अपनी फसल बो नहीं सकता था, तो उसको कर्ज देना, उसकी मदद करना दूसरे लोगों पर फर्ज था। और खुदा ने ये हुक्म दिया था कि अगर कोई तुम्हारा भाई फसल बो ना सके, उसके पास वसाइल ना हो, तो उसकी मदद की जाए, उसको कर्ज दिया जाए। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि बनी इस्राएल जब भी कोई किसी अपने गरीब भाई की मदद करता, और फिर वो जब उसके पास वसाइल होते तो वो कर्ज अदा कर देता, और वहां पर उनके दरमियान कोई नया कारोबार करने के लिए, तजारत करने के लिए वो कर्ज नहीं देते थे। क्योंकि इससे पहले कबल मसीह बाबली लोगों में ये दस्तूर था कि वो कारोबार के लिए कर्ज देते थे। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि बनी इस्राएल फसल बोने के लिए अगर किसी के पास वसाइल ना होते, तो उसका हमसाया या उसके करीब जो होता वो उसकी मदद करता था कि वो इस फसल को बो सके। और कलाम खुदा में फिर हम देखते हैं कि अगर किसी ने कर्ज देना होता और उसके पास वसाइल ना होते, तो मकरूज को, कर्जखा को देने के लिए अपने आप को गुलाम भी बनाना पड़ता था। जो कोई कर्ज ना दे सके, उसे उस कर्ज के इवज गुलाम बनना पड़ता था। और व्यक्ति की अंजील में भी हम देखते हैं कि जब एक साहूकार अपने नौकरों से हिसाब लेता है, और एक शख्स पर उसके 10,000 तोड़े थे, उसने उससे तलब किया, लेकिन उस कर्जदार ने, चूंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो साहूकार कहता है कि इसको और इसके बीवी बच्चों को बेचकर कर्ज वसूल किया जाए। तो वो शख्स माफी के लिए, कर्ज माफ करने के लिए दरखास्त करता है, लिहाजा उसे माफ कर दिया जाता है। लेकिन कर्ज उतारना जो है ये एक लाजमी था, क्योंकि अलीशा के दौर में हम देखते हैं कि जब एक बेवा, उसका शोहर मर गया और उसने कर्ज देना था, जब शोहर मर गया तो कर्ज का जो था वो आकर बेवा को कहता है कि या तो मुझे कर्ज दे या अपने दोनों बेटों को मेरा गुलाम बना दे। तो वो बेवा अलीशा के पास आती है और उससे कहती है कि मेरी मदद कर। तो अलीशा नबी ने इस आयन के हवाले से उस बेवा के कर्ज खा को ये नहीं कहा कि इसे माफ कर दे, बल्कि उसने एक मुआवजा किया, और मुआवजे के सबब से उसने पूछा उससे कि तेरे पास क्या है घर में। वो बेवा कहती है कि मेरे पास एक प्याला तेल है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो अलीशा कहता है कि ऐसा कर तो अपने मोहल्लेदारों से बड़े बड़े बर्तन कुछ वक्त के लिए आरियत ले ले और जाकर अपना दरवाजा बंद कर और अपने
अपने बेटों को कहना कि वो तुझे बर्तन देते रहें और तू उस तेल के प्याले को अंधेरना, और जब एक बर्तन भर गया फिर दूसरा उसके नीचे रखना, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी तूने अपने भले से बर्तन जमा किए हो वो सब तेल से भर लेना। और उस बेवा ने ऐसा ही किया, उसने अपने भले वालों से बड़े बड़े बर्तन लिए और अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और अपने बेटे को कहा कि मुझे एक बर्तन दे, और जो प्याला तेल उसके घर में था उसने उसे अंधेरना शुरू किया और वो बर्तन उसके नीचे रखा। जब वो तेल से भर गया तो उसने अपने बेटे से कहा दूसरा दे, जब वो भर गया तीसरा, चौथा, जितने बर्तन उन्होंने अपने महल्ले से इकट्ठे किए थे वो सब तेल से भर गए। वो बेवा कहती है एक और बर्तन ला, उसका बेटा कहता बर्तन खत्म हो गए हैं। और जब सब बर्तन भर गए और तेल मकूफ हो गया तो बेवा अलीशा के पास जाती है और उसे बताती है कि जितने बर्तन मैंने लिए थे वो सब तेल से भर गए हैं। तो अलीशा ने कहा कि जाकर उस तेल को बेच और कर्ज खा को दे, और जो बाकी बचे उससे तू और तेरे बेटे अपना गुजरान करें। रेसिस कर्ज जो है ये उतारना लाजमी है, लेकिन यहाँ पर जो मुकद्दस पौलुस जिस कर्ज के मुतल्लिक कहता है हमें उसको देखना है कि वो कौन सा कर्ज है। लिखा है कि ऐ भाइयों हम कर्जदार तो हैं, हम मकरूज हैं, हमने कर्ज देना है, हम पर किसी कर्जखा का कर्ज है। ऐ भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं हैं, ताकि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। मेरे अजीज मुकद्दस पौलुस यहाँ पर जो कर्ज के मुतल्लिक कहता है वो कह रहा है कि हम दुनिया के कर्जदार हैं, हम कौमों के कर्जदार हैं, हम मजलूमों के कर्जदार हैं, हम दलालों के कर्जदार हैं, हम यूनानियों के कर्जदार हैं, हम गैर यूनानियों के कर्जदार हैं। अगर हम पहले बात की 12वीं आयत में देखें तो कलाम खुदा में यहाँ पर रोमियो का खत उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, ऐ भाइयों मैं से तुम्हारा नवाकिफ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसे ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों का और गैर यूनानियों का, दनाओं का और नदानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तल मकदूर तैयार हूँ। मेरे अजीज मुकद्दस पौलुस जिस कर्ज का जिक्र कर रहा है वो रोमा के लोगों को लिख रहा है कि जिस तरह मैंने गैर कौमों में अंजील की बरादी की और लोगों को यीशु के लिए जीता, लोग फल लाए, मैं तुम्हारे पास भी आने के लिए तैयार था। मैंने बहुत कोशिश की, मैं हत्तल मकदूर इस बात के लिए कोशा हूँ कि मैं अंजील की बरादी करूँ। मैं यूनानियों का और गैर यूनानियों का, मैं अक्लमंदों का और दलालों का कर्जदार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अंजील की बरादी करूँ ताकि वो लोग जो यीशु से दूर हैं, वो लोग जो जिस्मानी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग जो जिस्मानी कामों को तरजीह दे रहे हैं, वो लोग जो खुदा से दूर हैं, वो अंजील को सुनकर यीशु पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाए, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो। इसलिए
मुकद्दस पौलुस कहता है कि मैं यूनानियों और गैर यूनानियों का कर्जदार हूं। और यहाँ पर 8वें बाब में कहता है कि ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं लेकिन जिस्म के कर्जदार नहीं हैं, हम रूह के कर्जदार हैं। अगरचे हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं लेकिन जिस्म के कामों से मगलूब नहीं होना है। अगरचे हम इस बदन में जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन जिस्म की ख्वाहिशें हम पर राज ना करें। हम कीमत से खरीदे गए हैं। खुदा ने हमारे जिस्मों की कीमत ली है। हमारा इफ्ती जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया है, जिसने हमारी कीमत अदा की है। ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं लेकिन जिस्म के नहीं हैं, हम रूह के कर्जदार हैं। मेरे अजीज, कलाम खुदा में अगर हम रोमियो के खत का 13वां बाब देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम किस कर्ज को अदा करना है। रोमियो का खत उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो हमें यह मालूम होगा कि हम किस कर्ज के तले दबे हुए हैं, हमें किस कर्ज को उतारना है। आज में आपको लिखा है, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि ज़ना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर, इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बड़ी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तमील है। मेरे अजीज, मुकद्दस पौलुस कहता है कि हम आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो। अगर हम पर कर्ज हो तो हमें अपनों से मोहब्बत करनी है। वो जिनके लिए यीशु ने अपना खून दिया है, वो जिनके लिए यीशु ने मार खाई है, वो जिनके लिए यीशु ने अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, वो जिनके लिए यीशु ने अपनी पसली में नेज़ा खाया है, हमें उनकी मोहब्बत का बोझ होना चाहिए। हमें उनसे मोहब्बत करनी है, क्योंकि कलाम खुदा में मुकद्दस पौलुस कहता है कि अगर हम ऐसों के साथ मोहब्बत करेंगे तो ये शरीयत की तमील है। हम शरीयत को पूरा करेंगे, हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। और फिर आगे लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई, अब दिन निकलने वाला है। पस्त तरीकी के कामों को तरक करके रोशनी के हथियार बांधे, जैसा कि दिन को दस्तूर है। शाइस्ती से चले, ना कि नाच रंग, ना नशाबाजी, ना ज़नाकारी, ना शहवत परस्ती, ना झगड़े, ना हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। हम जिस्म के कर्जदार नहीं हैं, हम रूह के कर्जदार हैं। हमें जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें नहीं करनी, बल्कि हमें रूह का कर्ज उतारना है। हम पर रूह का कर्ज है। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को पहन ले और रूह के मुताबिक चलें। मेरे अजीज, कलाम खुदा में
अगर हम देखें तो यूहन्ना की अंजील में भी लिखा है और ग्रंथियों के खत में भी लिखा है कि पहला आदमी यदि आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। हम कभी कभी नफ्सानी आदमी, जिस तरह कलामे खुदा में लिखा है कि पहला आदम जिंदा नफ्स बना और पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाला रूह बना। हम आदम के सबब से जो कानून कुदरत के मुताबिक जब हम पैदा होते हैं तो आदम की जो विरासत है वो हमें मिलती है, लेकिन जब हम यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होते हैं तो फिर यीशु मसीह में हम नए तरीके से पैदा होकर हम रूहानी आदमी बनते हैं। और कलामे खुदा में लिखा है कि खुदावंद यीशु को जब हम पहन लेते हैं, जब हम यीशु में नया जन्म लेते हैं तो फिर हम रूहानी बनते हैं। और कलामे खुदा में मुकद्दस पौलुस इसलिए कहता है कि हम कर्जदार तो हैं लेकिन जिस्म के नहीं हैं, हम रूह के कर्जदार हैं। और गलतियों के खत में मुकद्दस पौलुस इसीलिए ये फरमाते हैं कि अगर हम रूहानी हैं तो हमें रूह के मुआफिक चलना चाहिए। अगर जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे तो फिर हम जिस्म के तरस में शामिल होंगे, लेकिन हमारा जिस्मानी तरफ जो है, जो हम जिस्म के मकरूज थे, जो हम आदम के गुनाह के वसीला से उस गुनाह में शामिल हुए, वो कर्ज खुदावंद यीशु ने हमसे उतार दिया है। उसने हमारा कफारा दिया है, वो हमारा इल्ली हुआ है और उसने अपनी जान देकर हमें मूल लिया है। इसलिए अब हम जिस्म के कर्जदार नहीं बल्कि रूह के हैं। और कलामे खुदा में गलतियों के खत के 5वें बाब की अगर हम 16 से देखें तो लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यदि हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचंग और इनकी मानद तुम्हें पहले से जता चुका हूं। कैसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अगर हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे तो फिर हम रूहानी नहीं हैं। लेकिन कलामे खुदा में लिखा है कि अगर हम रूहानी हैं, अगर हम खुदा के रूह से पैदा हुए हैं और यीशु मसीह का रूह हम में बसा हुआ है, तो फिर हम रूह के मुआफिक चलें। और फिर 22 में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। और फिर लिखा है, जो मसीह यीशु में है उन्होंने जिस्म को उसकी ज़रूरतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। और आखिरी आयत जो है ये बड़ी गौर तलब है। लिखा है, बेजा फक्र करके, हम बेजा फक्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं ना एक दूसरे से जलें। कभी कभी हम एक दूसरे को चढ़ाने के लिए बहुत कुछ कह जाते हैं, और जब चढ़ाते हैं तो ये हमारे अंदर शेखी होती है। और शेखी जो है ये जिस्म का काम है।
हम जिस्म के इरादों को पूरा करते हैं। और ये शेखी किसी को चढ़ाना, चढ़ाकर कुछ कहना, ये कभी कभी नुकसानदेह साबित होता है, झगड़े का सबब बनता है, ईमानदारों में भी नातफाकी आ जाती है। अभी थोड़े दिन हुए, एक भाई ने किसी जगह पर बैठकर जब वो गुफ्तगू कर रहा था तो अच्छी बातों के साथ उसने चिढ़ाने के लिए एक बात कर दी, क्योंकि उसने किसी को पहली बात याद कराने के लिए वो कहा जो नहीं कहना चाहिए था, और वही बात झगड़े का सबब बन गई। और कभी कभी हम किसी को चिढ़ाते हैं और बहुत कुछ कह देते हैं, और ये झगड़े का सबब बनता है। और ये जिस्म की ख्वाहिश है, ये शेखी है, और जब हम शेखी मारते हैं तो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। और कलाम खुदा में लिखा है, अगर हम रूह से पैदा हुए हैं तो रूह के मुताबिक चलना चाहिए, हमें जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना है, हमें रूह के मुताबिक चलना है। और मुकद्दस पौलुस कहता है कि हम कर्जदार तो हैं, मगर जिस्म के कर्जदार नहीं हैं। हम किसके कर्जदार हैं? हम रूह के कर्जदार हैं। हमें रूह के कामों को करना है, हमें जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना है, क्योंकि 13वीं आयत में लिखा है, रोमियो 8वें बाब की 12वीं आयत में है कि हम कर्जदार तो हैं लेकिन जिस्म के नहीं हैं। और फिर 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। मेरे अजीज, यहाँ पर यह साफ लिखा है कि अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो जरूर मरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है हमें खाना नहीं है, हमें पीना नहीं है, हमें कपड़े नहीं पहनने हैं, हमें किसी से मिलना नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें किसी शादी में शामिल नहीं होना, किसी ब्याह में शामिल नहीं होना, किसी और जगह पर किसी अजीजों के अकार्ब के पास हमने जाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें जिस्म के वो काम जो हमें खुदा से दूर ले जाते हैं, जिस्म की वो ख्वाहिशें जो हमें गुनाहगार बनाती हैं, जिस्म के वो काम जो हमारे खुदा से हमें मुनहरफ करते हैं, हमें उन कामों को नेस्त नबूद करना है, हमें उन कामों को अपनी जिंदगी से जुदा करना है, हमें उन कामों को छोड़ना है, और हमें रूह के मुताबिक चलना है ताकि जीते रहे। मेरे अजीज, हम एक दूसरे की मोहब्बत के कर्जदार हैं। जिस तरह 13वें बाब के मुकद्दस पौलुस ने ये बात वादे की है कि हमें आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार नहीं होना। और वो मोहब्बत क्या है? जब हम अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करते हैं, जब हम किसी के हक में कोई भलाई का मंसूबा रखते हैं, जब हम किसी के लिए भला सोचते हैं, किसी को चढ़ाते नहीं हैं, किसी के साथ अदावत बढ़ाते नहीं हैं, तो कलाम खुदा में हम देखते हैं कि फिर हम जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आते हैं, हम दूसरों के कर्जदार हैं। जिस तरह मुकद्दस पौलुस कहता है कि मैं यूनानियों और गैर यूनानियों का, मैं दनाओं और बेवकूफों का कर्जदार हूँ। मैंने उनको अंजीर सुनानी है ताकि वो जिंदगी पाए, ताकि वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। और मेरे अजीज, आज भी जितने लोग ईमानदार हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं,
जितने लोग ये कलाम सुन रहे हैं आज वो सब कर्जदार हैं किनके, जो इस जमीन पर मजलूम हैं, जो दुखी हैं, जो अबलीस के हाथों मार खा रहे हैं, जो गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो खुदा से दूर हैं, जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, जिनके सबब से बेशुमार लोग दुखी हैं। अभी कल की बात है, मैं एक जगह पर बैठा था और एक बुजुर्ग माँ अपना किस्सा सुना रही थी कि वो बता रही थी कि मेरा बेटा काम भी नहीं करता और मुझे दिन रात दुख देता है, मुझसे पैसे मांगता रहता है, हालांकि वो खुद अपना गुजरान करती है। और बेटा नशा करता है और वो कहती है वो मुझे कभी कभी मारता है, रात को सोने नहीं देता, कभी कभी मैं तरस खाकर उसे पैसे भी दे देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो मुझे तंग नहीं करता तो फिर अपनी बीवी को तंग करना शुरू कर देता है। उसकी बीवी भी सुबह से शाम तक काम करती है और ना तो वो उसे सुख का साह लेने देता है और ना ही मुझे, अगरचे वो अपना गुजरान खुद करती है, लेकिन बताते बताते उसके आंसू बह रहे थे, वो रो रही थी। वो कहती है मुझे वो इस कदर कभी कभी पीटता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ और फिर मैं कहीं जाने पर मजबूर हो जाती हूँ, और अगर मैं चली जाती हूँ, एक रात में जब घर से चली गई कहीं तो उसने अपनी बीवी को अपनी बेटियों को तंग किया और वो बताने लगी दूसरे दिन कि उसने रात हमें नहीं सोने दिया और उसने दरखास्त की, उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस दुख से रहाई पाऊं, मैं इतनी दुखी हूं कि मैं रोटी के लिए परेशान नहीं हूं, मेरा गुजरान खुदा चला रहा है, लेकिन ये बेटा जिसको मैंने सुख के लिए पाला था ये मुझे दुख दे रहा है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। सारा दिन मैं अपनी दुकान पर बैठती हूँ और रात जब सोने का वक्त होता है तो वो सोने नहीं देता। इस कदर लोग दुखी हैं, इस कदर लोग जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, मजलूम हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है और मैं और आप उनके कर्जदार हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए रहम की अपील की जाए, उनके लिए खुदा से मांगा जाए। मुकद्दस पौलुस यही याद दिला रहा है कि भाइयों हम कर्जदार तो हैं लेकिन जिस्म के नहीं हैं, हम रूह के कर्जदार हैं, हम मजलूमों के कर्जदार हैं, हम बेवाओं के कर्जदार हैं, हम यतीमों के कर्जदार हैं, हम दुखी इंसानियत के कर्जदार हैं, हम जो अबलीस के हाथों मार खा रहे हैं उनके कर्जदार हैं, जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा किया हुआ है हम उनके कर्जदार हैं, जो बेबस हैं हम उनके कर्जदार हैं। और फिर आए इस कर्ज को चुकाने के लिए मेरी बहनों मेरे भाइयों आए अपने खुदावन के हजूर सामने हो, आए अपने हाथों को बुलंद करें, आए दस्ते दुआ बुलंद करें, आए खुदा के लोगों के लिए मांगे, आए आज कोई जुबान बंद न हो और कोई जिंदगी मांगने के बगैर यहाँ पर न बैठे। खसूसन मैं दरखास्त करूंगा उस बुजुर्ग माँ के लिए जिसके आंसू में देख रहा था और वो ज़ारों कतार रो रही थी, परेशान थी, दुखी थी, उसका बेटा नशा करता है और फिर उसे जीने का हक भी नहीं दे रहा, उसे सोने नहीं देता। आज उस माँ के लिए दुआ करें कि खुदा उसके बेटे को बदल दे ताकि वो इस दुख से रहाई पाए।
प्यारी बहन शाह से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए, सब साथ झुक जाएं, सब आंखें बंद हो, कोई आंख खुली ना हो, खुदावंद की हजूरी में झुके, खुदावंद से मांगे। हमारा जो इस प्लेटफॉर्म से जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनका मकसद यही है कि दुखी इंसानियत के लिए दुआ की जाए, मजलूमों के लिए दुआ की जाए, बेसहारों के लिए दुआ की जाए, जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए दुआ की जाए, जो मकरूस हैं, जो सूद ब्याज की लानतों में हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नशे में जकड़े हुए हैं, जिनके अजीजों अकारब नशे में जकड़ों से दुख सह रहे हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए दुआ करें।